Hello everyone. I'm here with session 3 on statistics for Z mains. Hope session 1 session 2 आपने देख लिया होंगे, आपको हेल्पफुल भी लगे होंगे. So let's start with session 3. इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि मैंने इसमें डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं. क्लियर. सेशन 1 सेशन 2 में आपने देख लिया होगा. 4 मार्क्स अगर आपको शेयर करने हैं तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. Clear? So go through the whole video. Different varieties are there. So let's start with some energy. The question number 1. Okay. Read out the question. In a set of 2n observations, half of them are equal to A and the remaining half are equal to minus A. जल्दी से question पढ़ लीजिए. पढ़ा question. So total how many observations are there? 2n observations are there. Out of 2n observations, n are A and n are minus A. A. How many A's are there? N A's are there. After that, minus A. How many minus A's are there? N A's are there. And n minus A's are there. So total 2n observations are there. Clear? Now, if the standard deviation of all the observations is 2, then the value of mod A is, ये हमको find करना है. Standard deviation is given. Standard deviation is equal to 2. So we have to find the value of mod of. ये है क्वेश्चन. अब अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इसका मीन फाइंड करें, मीन x बार, क्या होगा? सबको ऐड करेंगे, a प्लस ए, फिर इसके बाद माइनस ए प्लस माइनस ए. हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. तो हर एक माइनस ए को कैंसिल करता जाएगा. रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट विल बी होल अपॉन 2n. So result will be 0 upon 2n, that is 0. So mean is 0. Now standard deviation is given by under root sigma xi minus x bar whole square upon total number of observations. Clear? So what will be the next? It will be under root. अगर हम देखें x i, हर एक वैल्यू में से क्या माइनस करना है? 0. ओके. सो a माइनस 0 स्क्वायर प्लस a माइनस 0 स्क्वायर. हाउ मेनी टाइम्स? a माइनस 0 स्क्वायर n टाइम्स प्लस minus a minus 0 square minus a minus 0 square. How many times? Again n times. Minus a minus 0 square whole upon total number of observations are 2. यही होगा. तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा? each term will be a square plus a square plus a square plus a square plus a square. Each term will be a square. How many times? A square. 2n times a square. So this will be under root 2n a square upon a square. So upon 2n a square upon 2n. So this 2n cancel. Under root a square is a. So value is under root a square is mod of a. Clear? And it is given standard deviation is 2. That means mod of a is equal to. So answer is 2. Clear? Simple question. Very simple. Let's quickly move on to question number. Read the question. Mean of 5 observations is 7. If 4 of these observations are 6, 7, 8, 10 and 1 is missing, then the variance of all the 5 observations is. Mean of 5 observations is 7. Given mean x bar is 7.
If 4 of these observations are 6, 7, 8, 10 and 1 is missing, then the variance of all the 5 observations is okay. One observation is missing. So let's say 6, 7, 8, 10 and x. Clear? So mean will be equal to 6 plus 7 plus 8 plus 10 plus x whole upon 5, and mean is given, it is 7. So 6 plus 7 13, 13 plus 8 is 21, 21 plus 10 is 31 plus x is equal to 7 into 5, that is 35. So x is equal to 4. So the fifth observation is 4. इस तरह से हमने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किया. ओके, द वेरिएंस ऑफ ऑल द 5 ऑब्जर्वेशंस. अब वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं. अब वेरिएंस तो फाइंड करना आसान है. क्या होता है? इट इज सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n. तो इसे हम क्या करेंगे? सिग्मा xi, हर एक में से क्या माइनस करना है? 5. मीन इज 7. मीन इज 7. सो 6 माइनस 7 स्क्वायर plus 7 minus 7 square plus 8 minus 7 square plus 10 minus 7 square plus 4 minus 7 square whole upon total number of observations are 5. इसे कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो होगा हमारा आंसर. क्लियर? नेक्स्ट. Now the mean of set of 30 observations is 75. If each other observation is multiplied by a non-zero number lambda and then each of them is decreased by 25, their mean remains the same. Then lambda is equal to. Question जरा ध्यान से पढ़ो. क्या कहा गया है? Mean of a set of 30 observations is 75. तो number of observations कितने हैं? Number of observations 30 and mean is 75. Each observation is multiplied by a non-zero number lambda and then each of them is decreased by 25. Let originally observations are denoted by xi से डिनोट कर लेते हैं. ठीक है, denoted by xi. Then new observations can be denoted by yi is lambda xi minus 25. Then their mean remains the same. Then lambda is equal to. So what will be the mean? Now new mean y bar is equal to sigma lambda xi minus 25 whole upon n. ये होगा सिग्मा yi अपॉन n. yi की जगह हमने क्या लिखा? lambda xi minus 25 upon n. Okay. Now this can be written as lambda sigma xi minus, how many observations are there? 30. So 30 into 25 whole upon n. n is 30. यही होगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं? lambda into sigma xi upon 30 minus 30 into 25 upon 30, that is 25. Now sigma xi upon 30, sigma xi is sum of original numbers upon 30. So this term is original mean. So I can write it as lambda into 75 minus 25. This is equal to y bar. और हमसे क्या कहा गया? मीन रिमेन्स द सेम. मीन रिमेन्स द सेम.
So y bar will remain 75. So 75 is equals to 75 lambda minus 25. So 75 lambda is equals to 75 plus 25. So lambda is equal to 100 upon 75. You can cancel it by 25. So answer is 4 by 3. The value of lambda will be 4 by 3. ये बात समझ आई? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है। नया ऑब्जर्वेशन हमने क्या करा, हर एक ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और मैं 25 माइनस किया। तो नया वाई बार क्या होना चाहिए, सिग्मा वाई आई अपॉन एन, और वाई आई की जगह हमने क्या रखा, सिग्मा एक्स आई माइनस 25। क्लियर? इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the question. Read out the question. पढ़ा? क्या गिवन है? गिवन सिग्मा xi minus 5 when I varies from 1 to 9 is equal to 9. So sigma xi minus 5 is equals to 9. This is given. And sigma xi minus 5 whole square again I varies from 1 to 9 is equal to 45. ये तो information हमारे पास है. Then the standard deviation of the 9 items, ये जो x1, x2, x3, x9 है, इसका standard deviation हमको find करना है. अब standard deviation होता क्या है? Standard deviation is equals to अंडर रूट, हम कह सकते हैं इट इज सिग्मा xi स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर. ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्लियर? ओके. तो अगर हम यहाँ देखें ओरिजिनल टर्म में, इसमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा xi माइनस 5 इज इक्वल टू 9. अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं, सिग्मा साइन हटाऊं, से एक्सपैंड करूं, तो क्या लिखा जाएगा, x1 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 5, और ये कहाँ तक जाएगा, x9 माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 9. ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x9 माइनस, हर एक टर्म में से 5 माइनस हुआ है, तो कितनी टाइम्स माइनस हुआ, 9 टाइम्स. तो 9 इंटू 5 इज 45 इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x9, x1 प्लस x2 प्लस x3 up to x9 is equals to 9 plus 45, that is 54. So we can say sigma xi, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम है, is 54. तो एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, सिग्मा xi कितना आ गया, सिग्मा xi कम्स 54. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये हमको मिला, ये वाला टर्म हमको सिग्मा xi स्क्वायर. और इसको देखते हैं, हमसे कहा गया सिंस सिग्मा xi माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45. अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो व्हाट आई विल राइट x1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 5 स्क्वायर. ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, x9 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45. क्लियर? अगर हम ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो क्या होगा, यहां आएगा x1 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x2,
तो ऐसे करते करते लास्ट टर्म विल बी x9 स्क्वायर प्लस 25 minus 10x9 and this will be equal to क्लियर। तो अगर हम फर्स्ट टर्म्स को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x9 स्क्वायर। सेकंड टर्म्स को ऐड करें तो 25 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स, 25 इंटू 9। और ये माइनस 10x1 माइनस 10x2, इसमें से अगर हम माइनस 10 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 अप टू x9। सो दिस इज इक्वल टू 45, यही होगा। तो देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से आई कैन से कि ये जो टर्म्स हैं स्क्वायर्स वाले 9 टर्म्स का स्क्वायर है, सो दिस विल बी सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 25 इंटू 9 इज 225, दिस इज माइनस 10 x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x9। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 54, तो माइनस 10 इंटू 54 इज इक्वल टू 40, ये आ गया। तो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट सिग्मा xi स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी 45 माइनस 225 प्लस 540, तो 45 माइनस 225 इज 180, 180 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 540 में, सो रिजल्ट इज 360। तो सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, बस अब फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, xi स्क्वायर की जगह 360, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, क्या होगा, रूट सिग्मा xi स्क्वायर इज 360 अपॉन n इज 9 माइनस सिग्मा xi इज 54 अपॉन n इज 9 होल स्क्वायर। तो 9 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 4 40 अंडर रूट 40 माइनस 9 6 स्क्वायर इज 36, so result is root of 4 that is 2, so standard deviation will be 2, ये होगा हमारा। क्लियर, सिंपल है, दोनों को इसको एक्सपैंड किया, यहाँ सिग्मा xi मिला, इसको एक्सपैंड किया, यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर मिला, दोनों को यहाँ पे उठा के। क्लियर, एक बार और आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रीड द क्वेश्चन। The mean and the standard deviation of 5 observations. Number of observations are 5. Mean and standard deviations of 5 observations are 9 and 10. Mean is given 9. Standard deviation is given 10 respectively. If one of the observations is changed such that the mean of new set of 5 observations become 10, then their standard deviation is. अब ये तो ओरिजिनल डेटा हो गया, after change, or we can say after changing one observation, after changing one observation, new mean is equal to 10, ये आ गया। So we have to find standard deviation, then their standard deviation is, standard deviation, new standard deviation क्या होगा, ये फाइंड। क्लियर, अब देखो क्या मिलेगा यहां से हमको, न्यू मीन इज 10, ओल्ड मीन इज दिस। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो एक्स बार होता क्या है, इट इज सिग्मा xi अपॉन एन। तो एक्स बार कितना था ओरिजिनली, 9 था, तो सिग्मा xi अपॉन एन, एन इज 5, sigma xi is 9 into 5, क्लियर। न्यू सिग्मा xi क्या होगा, न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन हमको फाइंड करना है। If one of the observations is changed such that the mean of the new set of 5 observations become 10, ये 10 हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि 10 is new sigma xi upon n, n is 5,
So new sigma xi is equal to 10 into 5, that is 50. So that means जो दो numbers थे उसमें difference कितना था? Difference in the two numbers is 5. So that means difference in the two numbers is 50 minus 45, that is difference in the two numbers is 5. ये था difference two numbers में. Clear? जरा ऐसे नोट करो. पापा मैंने चुक वाली बनाई. Okay. Clear? Now there is one correction in the question. Correction is this number is not 10, it is 0. Standard deviation is 0. Standard deviation is 0. अब देखो ये important concept. अगर standard deviation 0 है, standard deviation 0 कब होगा? इसका मतलब deviation ही नहीं है, किसी नंबर में deviation नहीं है. Since originally standard deviation is 0, that means all the five observations are equal. Very important concept. All the five observations are equal. If standard deviation is 0, all the observations are equal. Clear? तो सारे observations जो हैं वो equal हैं. अब अगर सारे observations equal हैं तो सारे observations 5 हुए. That means originally each observation is 9. 9, 9, 9, 9, 9. So 9 को 5 times अगर हम ऐड करते हैं तो sum will be 45. सम कितना आता है? 45. क्लियर? सम कितना आता है? 45. ओके. अब तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे? अब न्यू ऑब्जर्वेशंस में हमने अभी अभी फाइंड किया कि ये जो है ये डिफरेंस इन द टू नंबर्स इज 5. एक नंबर बस चेंज किया है तो 9 होगा 9 होगा 9 9. एक नंबर 5 से इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? 14. So originally all the 5 observations were 9 and now the observations are 9 9 9 9 and one observation is changed, so it is now 14. ये आ गया न्यू डेटा हमारे पास. This is important. Clear? तो अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. अंडर रूट xi माइनस सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n. यही होता है. तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो वैल्यू क्या होगी? अपने पीछे देखो. क्या होगा? अंडर रूट हर एक में से क्या माइनस करना है? न्यू मीन इज 10. तो 9 में से 10 माइनस करेंगे. 9 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 9 minus 10 square plus last observation is 14 minus 10 square and whole upon 5. तो ये क्या आएगा? क्या आएगा? अंडर रूट 9 minus 10 is 1. 1 square is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 4 square is 16 upon 5. So 16 plus 4 20. Under root 20 by 5, that is root 4.
and root 4 is 2. So again answer is new standard deviation will be 2. Good question. Concept सिर्फ इतना था कि अगर standard deviation 0 है then all the 5 observations will be equal. Okay, so next question. Next question पे चलते हैं. If mean of the data is 8 then the variance of this data is. मीन ऑफ द डेटा 8 है तो वेरिएंस हमें फाइंड करना है. देखो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कहूंगा मैं तो इसे. क्या डेटा देखो क्या दिया हुआ है हमको. डेटा इज गिवन 7 8 9 7 8 7 लैम्डा 8 और इनका मीन क्या है 8. तो वेरिएंस हमें फाइंड करना है. अब एक डेटा नहीं पता लैम्डा तो पहले से ही पता कर लेंगे. मीन क्या होता है. मीन इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन और मीन कितना दिया हुआ है 8. इन सबको ऐड करते हैं 7 plus 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus lambda plus 8 upon how many observations are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 7 plus 8 एक 7 और था plus 7. ये डेटा था 1 2 3 4 5 6 7 8. ये so 8 into 8 64 is equals to 7 plus 8 15. 15 plus 9 is 24, 31, 39, 39 plus 15, 40, 54. 54 plus lambda upon 8. So in this way, we can find lambda. We can find the value of lambda. 7 plus 8. 8 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 64. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 64 माइनस 54 दैट इज 10. सो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 10. क्लियर. अब वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस क्या होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. तो बड़ी आसानी से हम इसे फाइंड कर सकते हैं. हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन हमको मिल गया. मीन कितना दिया हुआ है 8. हर एक ऑब्जर्वेशन में से 8 को माइनस करके स्क्वायर करो एंड डिवाइडेड बाय 8. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए. The mean and variance of 7 observations. How many observations are there? 7. Mean and variance. Mean is 8. Variance is 16. समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस. फास्ट सॉल्व करना है ऐसे ही बिल्कुल. हर एक इंफॉर्मेशन को निकाल लेना है इसमें से. इंफॉर्मेशन में दिया क्या है पूछा क्या है उसको रिलेट कैसे करना है. स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं. वही मीन वही वेरिएंस बार बार मीडियन आ जाएगा कहीं बीच में. कोई डेटा मिसिंग होगा जो हमें फाइंड करना है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. क्लियर. So mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 5 observations क्या है 2 4 10 12 and 14. Then the product of the remaining 2 observations is. We have to find product of the remaining 2 observations. So let the 2 observations be. क्या ले लें A and B ले लेते. क्लियर. तो हमारे 5 ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए. हमारे 5 ऑब्जर्वेशंस हो गए 2 4 10 12 14 A एंड यो. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट दैट मींस A इंटू बी. ये कितना होगा ये फाइंड. सॉल्व करें. क्या दिया हुआ है मीन. तो देखो मीन क्या होता है वही सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. तो मीन दिया हुआ है हमको कितना 8. तो 8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस A प्लस B होल अपॉन 7. ठीक. तो अब क्या होगा 7 को यहाँ लाते हैं. 7 इंटू 8 इज 56. दिस इज 4 प्लस 2 6 6 प्लस 10 16 16 प्लस 12 इज 28 28 प्लस 14 42 42 प्लस A प्लस B. इसका मतलब है कि A प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई 52 माइनस 14 42 दैट इज 40.
एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक। चलो आगे चलते हैं। और क्या दिया हुआ है, वेरिएंस हमको दिया हुआ है। वेरिएंस होता क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, यही होता है। तो वेरिएंस कितना दिया हुआ है, 16। अब हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार मीन माइनस करना है, और मीन कितना है 8, तो 2 माइनस 8 स्क्वायर, 4 माइनस 8 स्क्वायर, 10 माइनस 8 स्क्वायर, 12 माइनस 8 स्क्वायर, 14 माइनस 8 स्क्वायर, a माइनस 8 स्क्वायर प्लस b माइनस 8 होल अपॉन 7। तो 7 को यहाँ लाते हैं, 16 इंटू 7 112 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इज माइनस 6 स्क्वायर इज 36, 4 minus 8, 4 square is 16, 10 minus 8, 2 square is 4, 12 minus 8, 4, 4 square is 16, 14 minus 8, 6 square is 36, plus a minus 8 square is a square plus 64 minus 16a plus b square plus 64 minus 16 या तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 112 इज इक्वल टू 36 प्लस 16 प्लस 4 20 56 62 72 78 108 प्लस 64 प्लस 64 128 plus a square plus b square. This is minus 16a minus 16b. Take minus 16 common, a plus ये होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 108 को इस तरफ लाए तो क्या होगा, 1112 माइनस 108 इज 4, और इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 124 minus 124 is equal to a square plus b square minus 16 into a plus b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है 14, 16 into 14। अब 16 into 14 कितना होता है, तो a square plus b square is equal to minus 124 plus 224। तो ये टोटल कितना आ गया, 224 माइनस 124 इज 100, 224 माइनस 124 इज 100। तो देखो एक और इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब ये दो इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, एक a प्लस बी और एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, दैट मीन्स a इंटू बी फाइंड करना है। नाउ वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है, कितनी है 14। So this will be 14 square is equal to a square plus b square, ये वैल्यू भी हमने अभी अभी फाइंड करी, कितनी है 100 प्लस 2ab, और ये ab ही तो फाइंड करना है। तो 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 100 इज इक्वल टू 2ab। So ab is equal to 196 minus 100 is 96 upon 2, that is 40। So answer is 48, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर, समझ आया, हमने a प्लस बी फाइंड किया। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे लेकिन बनेंगे, ठीक है। तो फास्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 माइनस 8 स्क्वायर,
14 माइनस 4 माइनस 8 स्क्वायर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फास्ट बहुत सारे कैलकुलेशन हमको माइंड में करने होते हैं जेईई मेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। A student scores the following marks in 5 tests 45, 54, 41, 57, 43. His score is not known for the 6th test. 5 टेस्ट में ये है स्कोर, 6th टेस्ट का स्कोर पता नहीं है, लेकिन मीन स्कोर इज 48 इन 6 टेस्ट। मीन 6 टेस्ट में मीन कितना है 48। देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स इन 6 टेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मीन हमें पता है, मीन क्या होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। मीन हमको गिवन है कितना है 48, तो 45 प्लस 54 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 43 प्लस एक्स, 6 टेस्ट के मार्क्स को हम एक्स कह देते हैं अपॉन 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हमको एक्स मिल जाएगा। इसका मतलब ऑल 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो करना क्या है, हर ऑब्जर्वेशन में से 48 को माइनस करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, 6 से डिवाइड कर देना है, रूट फाइंड कर देना है, बस यहाँ से जो भी आएगा वो हमारा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द नंबर्स, देखो नंबर्स क्या है -1 0 1 के, और इन नंबर्स का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है √5। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है क्वेश्चन। ठीक, पढ़ लो एक बार जरा ध्यान से, सॉल्व करते हैं। अब स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, यही तो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब पहले मुझे एक्स बार मीन की जरूरत है। अब मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 + 0 + 1 + k अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर 4। तो -1 + 1 कैंसिल, 0 + k इज k, so this is k/4, हमको मीन मिल गया k/4। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम वैल्यू रखते हैं। हर एक ऑब्जर्वेशन में से x बार माइनस करके स्क्वायर करना है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करना पड़ेगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में से k/4 माइनस करना पड़ेगा। ओके, -1 माइनस k/4 स्क्वायर, 0 माइनस k/4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस k/4 स्क्वायर प्लस k माइनस k/4 होल अपॉन n, दैट इज, बस इसे सॉल्व करना है। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हट जाएंगे दोनों तरफ। यहाँ क्या बचेगा -1 माइनस k/4 होल स्क्वायर। अगर हम -1 कॉमन ले लें तो उसका भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 + k अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k/4 इज माइनस k/4, स्क्वायर करेंगे तो k² / 16, ये होगा 4 माइनस k अपॉन 4 होल स्क्वायर, और k माइनस k/4 कितना होगा 4k माइनस k, 3k/4, 3k/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k² / 16 इज इक्वल्स टू 5। हमने स्क्वायर किया था दोनों तरफ। तो देखो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये 4 + k का स्क्वायर इज 16 + k² a + b होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 8k 16 प्लस k² / 16 प्लस 4 माइनस k होल स्क्वायर इज 16 प्लस k² - 8k
अपॉन 16 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 5, ये होता है। तो सबका एलसीएम 16 हो गया, तो सारे टर्म्स ऐड कर लेते हैं। 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16 को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, 5 इंटू 16, तो क्या होगा के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3 टाइम्स प्लस 9k स्क्वायर, सो दिस इज 12k स्क्वायर, 8k माइनस 8k ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस 16 is 32, so 80 minus 30, k square is equals to 80 minus 32, 48 upon 4, so k square is equal to 4, so k is equal to 80 minus 32, this is 16 plus k square plus 8k, 16, 5 is 80, 48, 12k square is equal to 48 upon 12, that is 4. See, there is some calculation mistake. 4 plus k is 16 plus k square plus 8k plus k square 9k square. So 16 plus k square plus 8k, 12k square is 32. 5 is 80, 4 square 18, okay, 16 into 5 is 80, सॉल्व हमें इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है, कहीं तो हमने कोई तो एक मिस्टेक इसमें की हुई है, चेक वेयर इज द प्रॉब्लम, स्क्वायर इज 6, 12k स्क्वायर, 12k स्क्वायर, आप इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद यू कैन फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ k। क्लियर? सॉल्व बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean and the median of the following 10 numbers in increasing order are these। अब देखो यहाँ हमको क्या दिया हुआ इसमें 10, 22, 26, 29, 34, x, 42, 67, 70 and y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 numbers are there, ठीक। mean of these 10 numbers x bar is 42 and median of these 10 numbers is 35, ये given है। then we have to find the value of y upon x। अब देखो फिर एक सिंपल क्वेश्चन है, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, कितने ऑब्जर्वेशन है 10, अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मीडियन विल बी एवरेज ऑफ दीज टू, so median is equal to 34 plus x upon 2, और मीडियन कितना दिया हुआ है हमको 35, तो x क्या हो जाएगा, x is equals to 35 into 2 minus 34, that is 70 minus 34 is equal to 36, तो x मिल गया हमको। अब मीन हमें दिया हुआ है x बार क्या होता है सिग्मा xi अपॉन n, x बार कितना दिया हुआ है 42, सिग्मा xi क्या होगा, इन सबको ऐड कर लेंगे और हमको ये x भी मिल गया है, तो सिर्फ एक अननोन रह जाएगा क्या y, ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, सपोज दैट नंबर इज a प्लस वाई अपॉन, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ, समझ आया, और जैसे ही y हमको मिलेगा वी विल फाइंड y अपॉन x एंड y अपॉन विल बी x अपॉन विल बी आर,
सिग्मा एक्स आई में क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, सारे नंबर्स हमें पता है, ये एक्स हमने पता कर लिया है, वाई बस अननोन रह जाएगा, तो सम सपोज इट विल बी ए प्लस वाई अपॉन 10, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, कोई डाउट? सो इन दिस वे we are finishing our session 3 and we are completing the statistics for the mains. Hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए, बार बार इन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन इन्हीं में से मिलता जुलता कोई एक क्वेश्चन हमारे इस बार के 2020 एग्जाम में आने वाला है। So 4 marks, okay, समझ आया? So if my lecture helps you, kindly like it, comment on it, share it and subscribe our YouTube channel Ankit Classes. And please don't forget to press the bell icon to get further notifications for the videos. मैं ऐसे वीडियोस बना के आपको भेजता रहूँगा। क्लियर? अगर आपने फर्स्ट 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो दोनों सेशंस देखिए, 3 सेशंस में हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। क्लियर? सो प्रेस द बेल आइकन। बहुत जल्दी आपको एक नया वीडियो मिलेगा ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।